We all love to achieve financial abundance, right? But do we know how to do it? हमारे ब्रेन को रीवायर करना पड़ता है फाइनेंशियल अबंडेंस हासिल करने के लिए। और ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसमें हम इसी चीज पे बात करेंगे। हम 3 सीक्रेट्स डिस्कवर करेंगे। विल टॉक अबाउट 3 सीक्रेट्स दैट विल हेल्प यू रीवायर योर ब्रेन एंड योर नर्व सेल्स फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। Secret number 1, secret number 2, and secret number 3. In this video, you're going to be discovering the first secret to rewiring your brain to financial abundance. So, सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले I want to be talking about something like drive. Drive, what is drive? You know, I want you to discover how this I want you, this is my hope and my dream and my desire, कि आप एक बार समझ जाए कि ये कैसे आपके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बन सकता है। Now let me go on the board to explain this. Can I have the okay. ये हम सब एक जर्नी पे है, you know, all of us are on this journey and we love, चाहे हम होम मेकर है या we are at a full time job, we are business owners, whatever it is that we are doing, we all have this. Suppose you are here right now. This is what you are and this is what, you are on this journey. और आपको कुछ अचीव करना है जीवन में. You want to be achieving something. You want to go somewhere. ये आपने अपने लिए गोल बना के रखा है. This is the goal that you have made and you want to achieve this goal, right? तो ये जो फ्लैग है, this is the flag thing. You want to be reaching there eventually. आपको यहाँ चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ, धीरे धीरे eventually you want to come here. You want to be reaching here. What do we do? ये जो पूरे जर्नी के पूरे प्रोसेस में हम जो यहाँ तक जाते हैं, we all start our journey thinking of all these big goals, अपने फैमिली के लिए सपने होते हैं, हमारे फाइनेंसेस के लिए कि एक दिन मैं इतना, this is the amount of wealth I will have, this is the kind of family I will build. All of this, we get started here to go here, लेकिन कहीं ना कहीं जाते जाते जीवन में, we may have ये छोटे छोटे फॉल्स आते हैं. सपोज ये एक फॉल है, ये एक फॉल है, सब मल्टीपल फॉल्स आते हैं जहाँ पे हम फिसल जाते हैं एंड वी लूज आवर एंटायर मोटिवेशन. अंदर की जो जो अंदर का होता है, इट्स मोर देन मोटिवेशन, आई कॉल इट इंस्पिरेशन. अंदर की जो इंस्पिरेशन होती है आगे बढ़ने की, वो कहीं ना कहीं मर जाती है. ईदर वी डू नॉट हैव समवन टू अलाइट इट फॉर अस, कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल हो गए, तो नहीं है कोई सपोर्ट सिस्टम, नहीं है कोई हमें बताने के लिए कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमें उठाने के लिए कोई नहीं है. एंड दैट इज़ वाई वी नेवर राइज अगेन. कितने सारे in this first we said so many dead bodies are lying at everything. In real terms it is like so many dreams and so many desires and aspirations सारे मर जाते हैं with every point we fail, and that is why we are not able to achieve this. And when I talk about, हम जब ये secret ingredient की बात करते हैं, drive is something that keeps you going whenever you fall. यहाँ से हम गिरते हैं, अंदर आपके अंदर जो है that whole thing to, what is drive is, come what may, I am going to succeed. That confidence in you, that spirit in you, that nothing can hold me back. I am going to do whatever it takes to keep going. That makes you come up and again continue this journey. Once again you fall, you say, no, you know what? It's okay. मेरा ये fall बहुत deep था, ये उससे कम है. I can make it. And then you rise again, and then you fall again, and you rise again. If you have this thing, you can keep doing this. लेकिन sadly, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पे बात करना चाहती हूँ. हम सब ये जर्नी पे जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही आई वुड से देयर इज़ वन डार्क थिंग विच स्टॉप्स, और विच हैज़ द पोटेंशियल टू स्टॉप मेजॉरिटी ऑफ अस ऑन दिस जर्नी. वो ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ से जब आप गिरते हो तो ऊपर आने से रोकती है. वो ऐसी चीज़ है जो आपका अगर रास्ता ये है तो आपको कोई और आड़े रास्ते लेके जाती है. एंड दैट थिंग व्हाट आई कॉल गाइज इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड द हैबिट ऑफ ड्रिफ्टिंग. What is the meaning of drifting? Drifting मतलब यहाँ वहाँ भटकना, right? You drift away, भटक जाते हैं. और ऐसा क्यों होता है पता है? One of my favorite authors in personal development, जिनका नाम है नेपोलियन हिल, उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है एंड ही इज़ अ पायोनियर जहाँ से ये सब पर्सनल डेवलपमेंट शुरू हुआ है. एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वर्क. उनकी लेटेस्ट बुक आई है विच इज़ अ माइंड ब्लोइंग बुक, लाइफ चेंजिंग बुक, जिसका नाम है आउटविटिंग द डेविल. आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड रीड दैट बुक. वहाँ पे वही बुक में नेपोलियन हिल इसकी बात करे, द हैबिट ऑफ ड्रिफ्टिंग. मतलब क्या, हम सब जैसे मैंने बताया ये रास्ते पे जाते हैं टू अचीव अवर गोल. इवेंचुअली we fall down, eventually break down. जो अंदर की ड्राइव है उसको जिंदा नहीं रख पाते, because we all get into the drifting zone. तो एक ड्रिफ्टर होता है, पता है क्या करता है वो? If you start drifting, if you get into this rhythm of drifting, you go astray.
You do not know where to go because someone who is a drifter is not able to talk for themselves, is not able to think for themselves. उनके पास ओपिनियन होते हैं लेकिन उनके खुद के नहीं होते हैं. They do not have opinions of their own. They are people जिनके पास they are way too lazy to do anything for themselves. It's like वो अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में दे देते हैं. That I don't want to think for myself. You do the thinking and I'll do as you say. और अपने it's like वो blank canvas बन जाते हैं और पेंट ब्रश और कलर्स किसी और के हाथ में दे देते हैं. चलो मुझे पेंट करो. You decide what career I will take. You decide whom I will be friends with. You decide what I'll wear. You decide my values, my systems. You decide my environment. You decide everything. और ये जो जिनके हाथ में देते हैं ना वो पेंट ब्रश और पेंट कलर टू पेंट देयर कैनवस इज द सोसाइटी. अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपनी सोसाइटी, अपनी वर्क प्लेस कलीग, दे गिव इट टू देम. और मतलब सोसाइटी अपने ऊपर हावी होने देते हैं. दे डू नॉट थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड दैट इज वाई वो भटकते रहते हैं. दे फॉरगेट अबाउट द ड्राइव दैट दे हैव विद इन देम एंड दे गेट लॉस्ट अमंग्स द एंटायर सोसाइटी थिंग. And this is what happens. और ये जब मैंने पढ़ा था, when I read about this drifter कौन है, driven कौन है, तो मैं सोचने लगी मैं कौन हूँ. Am I a drifter? Am I driven? तो मैंने ये drifter के बारे में जो भी पढ़ा, एक चीज़ मैंने नोटिस की. one thing I realized for myself, यार मेघना definitely you're not drifter. drifter तो नहीं हो, लेकिन क्या पूरी तरह से driven हो, वो भी मैं नहीं थी. So I was somewhere between driven and drifter. And I believe कि हम ज़रा भी अगर थोड़ी सी भी action लेते हैं, I think we don't belong to the category of drifters, because drifters जो होते हैं वो अपने लिए सोचते नहीं. I believe all of you here today, in this morning, in this room, I don't think none of us are drifters here. We are all driven here. अगर आप driven है तो ही choose करेंगे कि मैं यहाँ पे आके मेरे लिए financial confidence develop करने की बातें करूँ, कुछ तो आगे बढ़ने की बातें करूँ. If you would have been a drifter, you would not be that thing. You would really not take this action for yourself. नहीं लेते थे हम action. मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले ये truth recognize करें अपने लिए कि आप drifter नहीं हैं, आप driven हैं. I want you all to put your hand on your heart and say this. I am driven. This is how it is. So we are all driven. Yes, excellent. I'm loving that, my friends. We are driven. ये सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट कि अगर आप अपने लिए डिसाइड नहीं करोगे तो कोई ना कोई आके आपके लिए डिसाइड करता रहेगा. इट्स बेटर यू टेक कंट्रोल ऑफ द होल थिंग इन योर हैंड. अपने हाथ में अपना कंट्रोल लीजिए. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू. और जब हम ये होते हैं ना गाइस, तो हमारे पास सपोज यू आर दिस, तो आपके पास दो ऑप्शन है. जैसे कि मैंने बताया, आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं या यू कैन बी समवन हु इज़ ड्रिवन. और ये बताया कहाँ पता चलता है? आपकी छोटी छोटी चॉइसेस में पता चलता है. आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हो उससे पता चलता है. हाउ डू यू चूज टू स्पेंड योर टाइम? हु आर द पीपल दैट यू डिसाइड टू हैंग आउट विद? ये सारी आपकी छोटी छोटी चॉइस में हिडन है ये आंसर कि आप ड्रिफ्टर है कि आप ड्रिवन है. सो आज से मैं चाहती हूँ एवरी डे, दिस इज अ होमवर्क फॉर दैट एक्सरसाइज फॉर यू. एवरी सिंगल डे दैट यू मेक अ चॉइस, आप चॉइस बनाएं अपने लिए और सोचे, अपना जैसे दिन बिताए इस जोन में प्रेजेंट रहे, इस जोन में अवेयर रहे कि मैं जो कर रही हूँ वो एक ड्रिफ्टर करता था कि एक ड्रिवन करता था. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और सारे हाई परफॉर्मेंस, ऑब्सेस्ड विद हाई परफॉर्मेंस, ऑल दीज पीपल हु आर परफॉर्मिंग फॉर देमसेल्व्स, और हाई परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट, आई एम सर्टिफाइड हाई परफॉर्मेंस कोच एज वेल. ये सारे लोगों को जब स्टडी करते हैं ना माय फ्रेंड्स, ऑल दीज हाई परफॉर्मर्स, एक चीज़ निकल के आती है बाहर, ये सारे लोग ड्रिवन है. कैसे लाते हैं अपने लिए ड्राइव? देयर आर लॉट ऑफ वेज जिससे हम ड्रिवन कर सकते हैं. वी ऑल वांट टू रीच हियर. सबसे पहले अगर हमें लगता है, जैसे मैंने पैशन ऑब्सेशन की बात की, अगर आपको लगता है आप कोई चीज़ से ऑब्सेस्ड है, एनीथिंग दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद, यू मे बी ऑब्सेस्ड विद कुकिंग, यू मे बी ऑब्सेस्ड विद बेकिंग और आर्ट वर्क और एनीथिंग, इफ यू फील दैट यू आर ऑब्सेस्ड, दैट इज वॉट विल टेक यू टू बिकम ड्रिवन. नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर एक सोशल ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है, मेरे बच्चों के लिए मुझे कर दिखाना है, मेरे स्पाउस के लिए कर दिखाना है, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर द सोसाइटी. मैं जहाँ से आई हूँ, हैड अ वुमेन जिसने बताया कि मैं जहाँ से आई हूँ वो एक गांव से आई थी. उन्होंने बोला कि हमारे गांव में ना वुमेन के ऊपर बहुत बहुत ऑपरेशन होता है, उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है और वो सब सहन करते हैं ऑल दीज थिंग्स बिकॉज द ओनली रीज़न इज़ उनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है. वो घर छोड़ के जाए तो भी कैसे जाए, बिकॉज दे डू नॉट हैव मनी. और जब ये सी स्टोरी सुनते, शी सेड मेघना, आई डू दिस बिकॉज मैं खुद सीख के उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाना चाहती हूँ.
उनको फाइनेंशियली फ्री करना चाहती हूँ ताकि वो ऐसा जीवन, दे नो लॉन्गर कंटिन्यू टू लिव द लाइफ दे डिड, एंड शी डिड दैट. बिहार का एक गांव है जहाँ पे उन्होंने इतना सारा काम किया है ऑलरेडी, राइट? इतनी सारी वुमेन की लाइफ चेंज की है. अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर एक सोशल ड्यूटी, एक ऑब्लिगेशन है कि उनके लिए कर दिखाना है, दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल. तो ये सारी चीज़ें जो आपको लेके जाएगी, लेकिन ओनली इफ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी ड्रिफ्टेड. एक बार ये जोन में आ गए ना गाइज, देन देयर इज नो लुकिंग बैक, देन नोबडी कैन सेव यू. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी मेरे 2 दिन के वुमेन एंड वेल्थ समिट में, जो हो रहा है मुंबई में 21 एंड 22 सितंबर, जहाँ पे हम ऐसी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं. हम समझेंगे कैसे हमारे ब्रेन को मनी ब्लूप्रिंट चेंज करने के लिए रीवायर कर सकते हैं, कैसे हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स को साइड पे रख के हम एक नया सक्सेस पाथ क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं. And the event is going to have other guest speakers as well. We have Jaya Kishori ji, we have Vishal Malkan, all of us coming together to help you rewire your money blueprint. So the link is in description below. Book your seat today and I will see you in the next video on Women in Wealth.